was scheduled with President Trump, which could not take place in physical format because President Trump had to leave Calgary to return to return to DC because of some ongoing issues. On that, I don't want to comment. But the very fact that was immediately followed up by a 35-minute telephone call, and I think we've been given an excellent readout of the meeting. Several objectives were achieved. I think the fact that President Trump started by offering condolences to the Honorable Prime Minister for the deaths in Pahalgam. Prime Minister briefed President Trump on the ongoing Operation Sindoor. He provided a very clear perspective that when the Pahalgam attack took place, I think it was on 22nd April, India had made it abundantly clear that this attack will not go unpunished, and this is no longer possible to justify this as proxy this time. There is our Western neighbor has been using terror as an instrument of state policy, and a clear decision was taken. Therefore, when the events unfolded, yes, there were some exchanges. Those exchanges dealt with a message which had come through the US Vice President. The US Vice President had talked about the Pakistanis likely to use force, to which they got a reply from the Honorable Prime Minister that if that were to be the case, our response would be even more robust. We have never accepted, and this has been a consistent position of India, third-party mediation, and there was no discussion on any trade or any other aspect during the exchanges with the US. The request for a ceasefire came from the Pakistani side, it came from their Director General of Military Operation, and it was responded to. And I think after having demonstrated to the world that in those 22 minutes, 9 terror outfits, all right, which have security links also were hit, and not in a notional or a pro forma way, but hundreds of kilometers inside Murid Ke, Bhavalpur, and also, I must remind you, the allied security infrastructure. But again, the Prime Minister has been making it clear. He provided the G7 with a very clear enunciation of position. The idea was not to attack Pakistan. The idea was to attack the terror establishment in a non-escalatory manner, and those who were perpetrating that terror, to leave them in no doubt that any attack on India, any terror attack, will henceforth be considered an act of war, and that Operation Sindoor is an ongoing process. I was just shown a message by a quote from the Prime Minister of Canada. देखिए, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का, ये आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस अभियान में। इसका मतलब क्या है? और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है
कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया। और मैंने ट्रेड और टैरिफ नॉट तारीफ, प्रधानमंत्री तारीफ सुनना चाहते हैं और राष्ट्रपति टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ को लेकर उन्होंने बात कही। तो ये तो एक तिहरा झटका है ना, ये तो एक ट्रिपल झटका है हमारे विदेश नीति के लिए। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के 14 जो बयान आए हैं, मई 10 से लेकर यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना। विशेष सत्र की बात तो अलग है, आप विशेष सत्र तो नहीं बुलाएंगे पार्लियामेंट का, वो 21 जुलाई को है। अरे आप कल बुलाइए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए और कहिए कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं कि व्यापार के बारे में हमने बातचीत की, बायलैटरल ट्रेडिंग। ये नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रहते तो भारत में हैं लेकिन पैरवी पाकिस्तान की करते हैं, उनके लिए ये भी स्पष्ट संदेश है। पूरे विश्व को भारत की चमक व धमक इस संदेश में दिख रही है। ये नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है, और देखिए, आपने खुद से बता दिया, जितनी भी बातें थी बिंदुवार, वो विदेश सचिव जी ने बता दी है। अब उसमें कोई ना तो भ्रम है और ना ही कोई संशय का प्रश्न है। भारत अब बदला हुआ भारत है, युवा भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ अब समझौते के मूड में नहीं है। आतंकवाद के समाप्ति तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस बात की इससे ज्यादा स्पष्ट चर्चा विश्व पटल पर कहीं और नहीं हो सकती। और अब
ये मैंने पहले कहा ना, बदला हुआ भारत है। ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है जो झुकता नहीं है और झुकाता भी नहीं किसी को। लेकिन अगर कोई बाज नहीं आता आतंक से तो उसको पर्याप्त जवाब भी देना जानता है। और ये बात विश्व पटल पर प्रधानमंत्री ने सारे देशों के आगे भी स्पष्ट की थी और उन्होंने आज जैसा विदेश सचिव ने बताया है कि उन्होंने स्पष्ट रूप में अमेरिका के सामने भी इसको प्रस्तुत किया है। कोई और किसी का इसमें दरमियान नहीं रहा। Prime Minister Narendra Modi ji's phone call has definitively demolished the distorted, dangerous misinformation campaign of the Congress party about mediation, and the Prime Minister's phone call has also pointedly pulverized the false and fake narrative spun by the Congress party about a trade deal. The Congress party has behaved in the most reprehensible manner, doubting, distrusting, and discrediting our Indian armed forces during Operation Sindoor. The Congress party did not even trust the briefing of the tri-services and the MEA. And they continued, the Congress party continued with this caustic campaign of calumny against our Indian armed forces. The Congress party should immediately seek unqualified apology and should ask for forgiveness of our armed forces for vilifying their valor and sullying their selfless sacrifice. This has to be done immediately by the Congress party. It also owes an apology to the nation for undermining national interests and the way in which they conducted themselves in the most irresponsible and reckless way, like a proxy for Pakistan. As far as Prime Minister Modi ji's phone call is concerned, he has sent a very clear statement to the United States that there was no mediation, there was no talk of trade deal, and going forward, the new normal for a new India, terrorism is not a proxy war, it's an act of war. This has been agreed to by the United States and sends a resounding message which will echo across the world, stating how India, when it comes to terrorism, India's policy of no tolerance always stands good against terrorism. And as far as the Congress party is concerned, the Congress party has behaved like spokespersons of Pakistan. They have behaved in a way in which they have peddled and parroted Pakistan's very noxious narrative of undermining our Indian armed forces. Like I said before, the Congress party ought to apologize immediately to the Indian armed forces and our nation, and the conduct of the Congress party during Operation Sindoor will not be forgiven or forgotten by our people, and the conduct of the Congress party will live in infamy. Prime Minister Narendra Modi ji's phone call has definitively demolished the and it was done at Pakistan's request. I have no comments on what Foreign Secretary has said, but there are questions. The questions are asked by political parties, by people of our country. The questions are posed to Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Why Prime Minister cannot open his mouth and tell the people what exactly happened? What was the role played by US, his own friend Mr. Donald Trump? Why Prime Minister is not opening up his mouth? Prime Minister during his tenure has not addressed formal press conferences, but
Prime Minister has developed his own ways to reach out to the people. Man Ki Baat, addressing the nation directly. Why Prime Minister could not say all these things during Man Ki Baat? Why Prime Minister could not say all these things while addressing the nation? This is what we are asking. Political parties, we have the right to demand there should be a special session of the Parliament so that Parliament should be taken into confidence, people should be taken into confidence. Prime Minister Modi and government have not agreed to convene the special session of the Parliament, and Prime Minister has not convened even all-party meeting to explain what exactly happened. Why Mr. Trump goes on claiming that he mediated between India and Pakistan for ceasefire. Now it is said Prime Minister told Mr. Trump will agree, endorse what Mr. Vikram Misri has said. We do not know. That is why we are a democracy. What Mr. Trump and what he does in US, that's a different thing. It is for him. But India is a democracy, largest democracy in the world, representative democracy. And we have a parliament. And that parliament should not become redundant. And our parliament should discuss the जय जगन्नाथ, जय माँ अंबिका, जय माँ किचकेश्वरी। आज आम समस्त एवं विशेष करिकी मयूरभंज जिलावासी एक पवित्र दिन। आपण मानकर द्वारा प्रतिष्ठित होइथिबा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व रे जो सरकार आसी आपण माने आनिथिबा आ सेही सरकार रो 1 वर्ष पूर्ण हेछि। सफलता पूर्वक 1 वर्ष पूर्ण हैला परे जो 1 वर्ष पूर्ति पालन एही अवसर रे आज स्वतंत्र भावे ओडिशार स्वतंत्र स्थान अधिकार करिथिबा मयूरभंज जिला एवं ये मयूरभंज जिले रे राज्य स्तरीय आदिवासी शक्ति समावेश आज ये जो कार्यक्रम चली ए अवसर रे आज सभा मंच रे उपस्थित थिबा मान्यवर मंत्री अनुसूचित जनजाति और जाति उन्नयन आज एटी उपस्थित थिबा मयूरभंज जिलार विभिन्न अंचल कोण अनुकोण आसीथिबा समस्त मोर अति प्रिय भाई भौणी माने एवं आम केन्दुझर भी किछि भाई माने एठी आसीछंती ए कार्यक्रम रे जोग देबा पई। ओडिशा रे आम डबल इंजिन सरकार सफल 1 वर्ष पूर्ति एवं मयूरभंज जिले रे जोटी ट्रिपल इंजिन सरकार अछि आउ सेथि पई 1 वर्ष पूर्ति उपलक्षे समस्त मयूरभंजवासी को सर हृदय धन्यवाद। समस्त को जोहार। गत 1 वर्षर यात्रा आम सरकार अविस्मरणीय। जेतेबेले नूतन सरकार आसिला आपण माने समस्ते निश्चित भाव में गत 24 वर्ष धरी जो गोटे नेतृत्व रे सरकार थिला एवं
24 वर्ष परे समस्ते आपण माने मन बड़ेले सरकार को बदलैबा पई परिवर्तन करले एवं नुआ सरकार को ओडिशा रे आपण माने आनिले एवं ओडिशा रे जेते बेले नुआ सरकार को आनिले आज निश्चित भाव जय जगन्नाथ। भगवान बिरसा मुंडा जन्मदिन को 15 नवेम्बर को जनजातीय गौरव दिवस भाव रे पालन करी आज जाको घोषणा कले जनजातीय गौरव दिवस भाव रे पालन करबा पई आज आदि आदिवासी समाज को गौरवान्वित करबा पई एवं सेमान को सम्मान देवार कार्य आज आम सरकार करूछंती। आज आमे देखिबा आज ये माटीर सुपुत्री ये माटीर गर्व गौरव आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जने आदिवासी महिला को भी देशर सर्वोच्च स्थान देवार कार्य आज जदि कही करिसंती आज आमर यशस्वी प्रधानमंत्री करिसंती। केवल जे राष्ट्रपति नुह ये राज्य रे जो आदिवासी रहिचंती ये जिल्ला रे 59% आदिवासी रहउचंती राज्य रे 1/4 होउचंती आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम एवं स्वतंत्र भाव में मयूरभंज पाई गोटे सौभाग्य एवं खुशीर दिन आज समग्र ओडिशार सृष्टिर जाति एवं ए सृष्टि सहित जड़ित थिबा जनसाधारण मानकर शक्ति समावेश अवसर आम गणरे अछंती राज्यर लोकमानंकर मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय सर्वोपरि आम आज ये समावेश रे मंचासीन होती राज्यर वरिष्ठ मंत्री पंचायत राज पानीय जल ग्राम उन्नयन विभाग मंत्री रविनारायण नायक महोदय सर्वोपरि आज ये समावेश मेन नेतृत्व नौथिबा राज्यर वरिष्ठ मंत्री आदिवासी मंत्री श्री नित्यानंद गंड महोदय एवं आम मयूरभंज जिलार वरिष्ठ मंत्री श्रीयुक्त कृष्णचंद्र महापात्र महोदय सर्वोपरि आम मयूरभंज सांसद सरकार बदलिला किंतु केवल नाकरण बदलुं विजु स्वास्थ्य कल्याण रंग बदलुची किंतु लोकंकर स्थिति रे जो आशा करा जाउथला किंबा जो सरकार गोटे निरवच्छिन्न प्रक्रिया यदि सरकार भी गला विरोधी दल हिसाब से दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से आमर निर्देश नवीन बाबूंकर जे यही कथा गुड़िक जोटा आम सफलतार उपलब्धि ताकू सरकार नौने विजु स्वास्थ्य कल्याण आज जो चेंज होगा आयुष्मान लोक हैरान होती मरुंट नाबालिका आईन श्रृंखला परिस्थिति आज कन्विक्शन रेट भारत में गोटे वर्ष एकदम कम आज परदिन देखिए गोटे गणधर्षण है गोटे कॉलेज छात्र मान भर क्षोभ आमर प्रिय नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं विजु जनता दलर सभापति श्री नवीन पट्टनायक आह्वान क्रमे जेतेबेले बीजेपी सारा ओडिशा रे गोटे वर्षर उत्सव पालन करुचंती ठीक सेतिकी बेले तांकर विफलता को लेकिन आमे लोकों पाखक आसीछु
आज विजु युव छात्र जनता दल तरफ पुरी रे एक आह्वान क्रमे एवं विफलतार प्रतिवाद रे जो जो कथा से माने प्रतिश्रुति देइतिले पालन करि पारि नांती ता सहित भी दरदाम वृद्धि नारी निर्यातना हईजा एवं प्रत्येक क्षेत्र में जी 18% बजेट पूर्वर जी केंद्र सरकार ओडिशा को दौले बजेट ताठू बर्तमान आहरी 18% बजेट कम करके दबा अन्यान्य बहुत कथा को नहीं आज ता प्रतिवाद रे विजु युव छात्र जनता दल तरफ आज एठी एक समावेश करा जाउची। तांकर ए जून मासरे वर्षे पुरिला 365 दिन जून 12 रे जते शपथ नैथिले 2024 रे कहिथिले 100 दिन भितर करिके देखेबो 365 दिन पूरी के 400 दिन को गला कोउथरे सफलता हासिल करछनी। मो ताम गोटे छोटिया प्रश्न पचारुची तमरो बजेटटा कोन इलास्टिक तम बजेटटा कोन इलास्टिक तुम सब करदेल गोटे निर्दिष्ट बजेट भितर तुम काम कर कौन कर पकेच इस मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कौन सी उपलब्धि है? यही 1 साल की उपलब्धि है। आप चुप क्यों हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 20 तारीख को। प्रधानमंत्री जी बताइए क्या उड़ीसा राज्य में महिला होना अपराध है? कल हरिश्चंद्रपुर में एक 16 बरस की बेटी जो कोंझर जिले मुख्यमंत्री का जिला है 16 बरस की बेटी के साथ रेप हुआ, पेड़ में उसको टांग दिया गया है। इतनी निर्मम हत्या। जिस सुभद्रा योजना की बात ये सरकार करती है, अंगुल जिले के जो कन्या ब्लॉक की SC समाज की वो महिला आती है, वो सुभद्रा, उसका नाम सुभद्रा था और उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कई दिनों तक लाश जंगल में रहा। जब हमारे PCC प्रेसिडेंट गए तब जाके आनंद फानंद मुकदमा दर्ज हुआ। वो भी उसके सारे आर्गन निकाल लिए गए थे। कहाँ गया उसका आर्गन? कौन है जो मानव तस्करी कर रहा है?